Good morning, students. I hope everyone is doing great and you're studying very hard. So, I'll be dealing on the topic today that is on the basis of distribution. So, we have seen in the last video on the back means about the resources, natural resources, how it is divided. Then we have come across on the basis of origin, on the basis of development, and on the basis of renewability. Then today we are going to see on the basis of distribution. So you have already aware that on the basis of renewability we have seen it's divided into two subcategories, that is, one is renewable and one is non-renewable. We have seen. Then I hope all of you are aware. So आप लोग सबको मालूम है renewable and non-renewable. तो हम लोग डील कर चुका है वो, तो हम लोग आज डील करेंगे on the basis of distribution क्या क्या है. Then let's see natural resources on the basis of distribution कैसा divide किया है. Then resources can be classified as ubiquitous and localized on the basis of distribution. तो distribution का अंदर में सब डिवाइड किया गया है दो भाग में, that is ubiquitous and localized. तो ubiquitous क्या है और localized क्या है हम लोग देखेंगे. Then on the basis of distribution हम लोग देखेंगे ubiquitous and localized distribution of resources. Let's see. Resources like sunlight and air which are present everywhere are ubiquitous resources. तो resources जो है इस दुनिया का everywhere में present है तो उसको हम लोग बोल सकता है ubiquitous resources. That means example like sunlight and air. Sunlight and air बहुत ये unlimited resources है जो present everywhere है, उसको बोलता है ubiquitous resources. Resources like minerals which are found only some places are known as localized resources. तो resources opposite है ubiquitous का. Localized resources वो opposite है ubiquitous resources का. Resources जो सिर्फ कुछ जगहों में मिलता है उसको हम लोग बोल सकता है localized resources. Example like minerals. Minerals सब जगह में नहीं मिलता है. जैसा कि example we can take oil products. सिर्फ इंडिया में 3 जगहों में मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. One is मुंबई हाई, असम एंड गुजरात. ये तीनों जगहों में. तो हम लोग इसको एग्जाम्पल ले सकता है as localized resources. जो सिर्फ कुछ ही जगहों में मिलता है उसको localized resources बोलता है, और जो resources सब जगह में present है उसको ubiquitous resources बोलता है. Then let's see. There is an uneven distribution of resources depending on the types of landforms and climate. तो सब जगहों में एक तरह से resources divide नहीं हुआ है. Uneven means बहुत यूनिक डिफरेंट तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है resources का, और resources का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड होता है उसका लैंड कैसा जमीन है, कैसा टाइप है, पहाड़ी इलाका है या प्लेन इलाका है, इसमें डिपेंड होता है, एंड क्लाइमेट पर डिपेंड होता है of resources. Then the amount of usage also affects the quantity of resources present. तो कितना हम लोग यूज कर रहा है वो भी बहुत इफेक्ट करता है रिसोर्सेज का क्वांटिटी को. हम लोग कितना यूज कर रहा है, कितना बचा रहा है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज को. For example, continuous mining of minerals depletes their quantities which might have been very high at some place. तो हम लोग continuous mining करना से means resources खत्म हो जाएगा. depletes means वो खत्म हो जाएगा और उसका क्वांटिटी भी खत्म हो जाएगा. और अगर हम लोग continuous mining करता है तो resources minerals
डिप्लीट हो जाएगा और उसका क्वांटिटी भी घट जाएगा। और ये कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जगह में कंटिन्यूसली रिसोर्सेज निकालने से वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिप्लीट हो जाएगा। और रिसोर्सेज फॉर्म होने में बहुत साल लगता है, मिलियन ईयर्स। तो कुछ जगह में जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है वो बहुत हाई है। देन वो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग दो देखा है, एक लोकलाइज एंड विकिटियस। विकिटियस मीन्स जो रिसोर्सेज प्रेजेंट एवरीवेयर है, एंड लोकलाइज मीन्स कुछ जगह में रिसोर्सेज पाया जाता है, उसको लोकलाइज रिसोर्सेज बोला जाता है। देन और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन दो फैक्टर में मीन्स बहुत निर्भर होता है, एक है लैंडफॉर्म्स और क्लाइमेट में। देन और रिसोर्सेज का मीन्स क्वांटिटी को इफेक्ट होता है अगर ज़्यादा हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करना से। देन लेट्स सी नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम लोग देखेंगे। देन रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप तो रिसोर्सेज को हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट वन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या है हम लोग देखेंगे। लेट्स सी इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज आर owned privately by individuals। और इंडिविजुअल रिसोर्सेज में जो रिसोर्सेज प्राइवेट ओन करता है, और एग्जाम्पल एक व्यक्ति ओन करता है, उसको बोलता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसा कि एक कंपनी का मालिक अकेला है, उसको बोलता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल farmland is owned by farmers and urban people own plots, houses and other property। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है इंडिविजुअल ओनरशिप, उसको बोला जाता है जो रिसोर्सेज को प्राइवेटली ओन करता है, मीन्स अपना इंडिविजुअल। दैट इज एग्जाम्पल फार्मलैंड जो ओन करता है सिर्फ फार्मर्स लोग, और अर्बन में जो लोग ओन करता है अपना प्लॉट्स, अपना मकान का एरिया, हाउसेस और अदर प्रॉपर्टी, उसको बोलता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देन लेट्स सी नेक्स्ट, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। These resources are available to all the members of the community। और ये कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो सबको अवेलेबल है, जो कम्युनिटी का वो सब लोग यूज कर सकता है उस रिसोर्सेज को। फॉर एग्जाम्पल ponds, public parks, picnic spot, playgrounds etc. are available to all the community members। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि फिशरी पॉन्ड गांव में जैसे कि प्लेग्राउंड है, और पब्लिक पार्क से उसमें कोई भी जा सकता है और कोई भी प्लेग्राउंड में खेल सकता है, वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज है। जैसा कि गांव का पूरा व्यक्ति उस गांव का प्लेग्राउंड में खेल सकता है, तो वो एग्जाम्पल है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज का, जो कम्युनिटी है से होल पूरा गांव ऑन करता है उसको। और इंडिविजुअल में जो प्राइवेटली ऑन करता है सिर्फ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति या एक परिवार। देन नंबर 3, natural resources, all the minerals, water resources, forests, wildlife, land within the political boundaries and oceanic up to 12 nautical miles, that is 19.2 kilometers from the included in national resources। national resources उसको बोला जाता है जो भी देश मीन्स ओन करता है, जो एक देश ओन करता है, जैसा कि जो भी मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेस है, वाटर है, जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, जमीन है, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जैसे कि इंडिया को एग्जांपल, इंडिया का जितना भी बाउंड्री है उसका अंदर में जितना भी रिसोर्सेस है, जैसे कि मिनरल्स हो, वाटर्स हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, लैंड हो, वो सब कुछ ओन करता है नेशनल गवर्नमेंट, उसको नेशनल रिसोर्सेस बोलता है या
उसको यूनियन गवर्नमेंट ओन करता है। और ओशनिक एरिया जो 19.2 किलोमीटर, जैसे कि इंडिया का इंडियन ओशन का हम लोगों का 19.2 किलोमीटर था, वो इंडिया का रिसोर्सेस माना जाता है। ओशन एरिया 19.2 किलोमीटर, जैसे कि हम लोगों का कोस्ट, जैसे कि हम लोग जैसे कि कोस्ट एग्जांपल वी कैन टेक फ्रॉम दिस वन, मेरीना बीच कोस्ट से लेके जितना भी इंडियन ओशन तक स्प्रेड हुआ है 19.2 किलोमीटर, वो इंडिया का नेशनल रिसोर्सेस कहलाएगा। देन दैट इज नेशनल रिसोर्सेस जो गवर्नमेंट ओन करता है, उसको बोलता है नेशनल रिसोर्सेस। जो भी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया जो भी रिसोर्सेस है उसको ओन करता है, वो नेशनल रिसोर्सेस बोला जाता है उसको। देन लास्ट वन इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या है हम लोग देखेंगे। द ओशन रिसोर्सेस आउटसाइड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इंटरनेशनल रिसोर्सेस उसको बोला जाता है जो ओशनिक रिसोर्सेस है आउटसाइड 200 किलोमीटर, जो एक्सक्लूसिव स्पेशल आउटसाइड का बाउंड्री में, जो 200 किलोमीटर का आउटसाइड बाउंड्री में जो भी ओशन एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस बोला जाता है। और जो ओन करता है इसको यूएन यूनाइटेड नेशन ओन करता है। और अगर वो एरिया को अगर आपको यूटिलाइज करना है तो आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, दैट इज यूनाइटेड नेशन के साथ, उसको बोलता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस जो यूनाइटेड नेशन ओन करता है। आउटसाइड ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का 200 किलोमीटर ओशनिक एरिया 200 किलोमीटर से क्रॉस करके जितना भी अलग एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस का अंदर में आता है, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। तो हम लोग देख चुका है ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग देख चुका है मींस फॉर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप फॉर कैटेगराइज मींस सब कैटेगराइज इनटू फोर। फर्स्ट है इंडिविजुअल ओनरशिप जो है प्राइवेटली ओन करता है बाय वन पर्सन, एग्जांपल जैसे कि फार्मर्स हु ओन फार्मलैंड, जैसे कि कम्युनिटी रिसोर्सेज जो ओन करता है बाय कम्युनिटी एज ए होल, लाइक एग्जांपल प्लेग्राउंड। एंड नेशनल रिसोर्सेज इसको बोला जाता है विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको नेशनल रिसोर्सेज बोला जाता है और उसको ओन करता है बाय द गवर्नमेंट। देन इंटरनेशनल रिसोर्सेज मींस जो रिसोर्सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बाहर है, ओशन एरिया जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बाहर है, जैसा कि 200 किलोमीटर्स का ओशन एरिया का बाहर है, वो एरिया को ऑन करता है इंटरनेशनल बॉडीज। देन लेट्स सी, अभी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बारे में ऑलरेडी डील कर, एंड नाउ वी विल डील ऑन मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? With the passage of time, some natural endowments are converted into items of utility that have value and worth. तो with the passage of time, जैसा ही टाइम मीन्स जैसा टाइम बढ़ते गया है, कुछ नेचुरल endowments yes